Hey, what's up, everyone? Hope you are doing fine. Welcome to a new lecture. We are discussing paper Advanced Social Text and Media Analytics called Asthma. So, this is I think the last subject that we're gonna study. So, in Asthma, like what is the basic thing that we need to study? Like the text mining. The first unit is text mining, method and approaches, web analytics, social media networks, social media analytics. So if you look about the topic na ki what is basically advanced social text and media analytics. So there are three things: social media, like we're gonna talk about social media, text, and what is text mining and everything. So in this lecture, in this first lecture, we're gonna discuss about what is text mining. So before like understanding what is text mining, you need to understand what is text. So I think everybody's know what is text and how we just gonna implement few features or you like use some techniques for text mining. So let's study. It's quite a very easy topic, or I can say very easy subject. This so like first we're gonna study text mining. Obviously, let's start. So this is a meta analysis. ये मैंने कुछ नया किया है कि before like starting a particular chapter, we should understand what this chapter like teach us, like how the overview or you can say a high level thing of this particular chapter. So this unit transforms unstructured data, that is messy human language data, that is unstructured data or unlabeled data, into structured data that is should be in like rows and columns so that the machine could understand it. So basically text mining में हमें पढ़ना है to convert, how should we convert unstructured data to a structured data. ये हमें इस यूनिट में पूरी तरह से पढ़ना है. Okay, let's start it. तो what is the introduction of text mining? What is text mining? तो text mining is also known as text data mining. ठीक है, is a process of deriving high quality information and patterns from unstructured data that combines data mining, machine learning and natural language processing. So for the sake of the knowledge I can say कि data mining, machine learning and NLP, natural language processing, these are the three you can say applications of text mining. कि अगर आपने text mining किया है तो ये सारी चीज़ें उसके application है. यहाँ से आप text data mining, ML वगैरह सब चीज़ें कर सकते हो. text mining क्या है? text mining is a process of deriving high quality information और patterns unstructured data से, यानी कि जैसे मैंने बताया था unstructured से structured करने का तरीका है. टेक्स्ट माइनिंग के तरीके क्या क्या होते हैं, कोर प्रॉब्लम क्या क्या होता है? दिस इज गैदरिंग डेटा, प्री प्रोसेसिंग इट, इंडेक्सिंग डेटा, माइनिंग डेटा एंड डेटा विजुअलाइजेशन. ये पांचों चीज़ें हमें यूनिट 1 में पढ़नी है डिटेल में. बस यूनिट 1 वही है, टेक्स्ट माइनिंग क्या है एंड व्हाट आर द 5 स्टेजेस और द 5 पिलर्स और द 5 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट माइनिंग और यू कैन से सब कुछ. तो लेट्स स्टार्ट. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. बेसिकली वी नीड टू गैदर डेटा. उसके लिए क्या करते हैं? सो वी ऑल नो कि व्हाट इज कंप्यूटर लव्स नंबर्स ना. स्ट्रक्चर्ड डेटा ही कंप्यूटर को समझ में आता है. लाइक आई हेट बुक्स, ईमेल्स, ट्वीट्स, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो द टेक्स्ट माइनिंग ब्रिजेस द गैप एंड यू कैन से दिस इज नॉट एनीथिंग. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा ही देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्चे के सामने, एक बच्चा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर वाज इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज जस्ट अ डम मशीन. मैं उसके सामने एक जानवर रख दूंगा, ठीक है, दिस इज अ यू कैन से एनिमल, जिसके कान है, जिसके मूंछें है, 3 बाल है इधर, जिसके फर है, जिसके 4 पैर है, एक पूंछ है. तो क्या ये बच्चा ये देख के बता देगा कौन सा जानवर है? इसको कुछ पता नहीं कि जानवर क्या होते हैं, कितने तरह के जानवर होते हैं, तो ये नहीं बता पाएगा. पर वही एक एक्सपीरियंस्ड इंसान होगा, या चलो वो देख के बता देगा कि ये क्या है. या इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. वेट या सो दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें ये कैट तो है, मतलब हमें पता है ये कैट है, तो हमने इसको लेबल कर दिया कि दिस इज अ कैट. अब हम इससे पूछेंगे तो अब ये बता देगा हाँ ये कैट है, या इसका सिमिलर कुछ आ गया तो बता देगा दिस इज अ कैट, बिकॉज वी लेबल्ड इट. तो व्हाट वी हैव डन कि पहले मुझे पता नहीं था ये कौन सा एनिमल है, सो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट इज अनलेबल्ड. बट जब हमने इसको लेबल कर दिया कि यार इट इज़ अ कैट,
और अब उससे सिमिलर कुछ भी आएंगे तो अब हम बता सकते हैं कि इट्स लुक्स लाइक अ कैट, तो माइट बी इट्स अ कैट. तो हमने व्हाट वी हैव डन इज दैट कि टू मेक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट. ठीक है, तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, दे हेट बुक्स, ईमेल्स और ट्वीक्स जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. तो यू कैन मेक अ डायग्राम कि यू कैन से कि तुम्हारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है इनपुट में, देन यू मेक अ प्रोसेसिंग, दैट इज टेक्स्ट प्रोसेसिंग, देन फीचर जनरेशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, देन फीचर जनरेशन, देन सिलेक्ट द फीचर्स. यहाँ तो राइट एरो मीन्स अ राइट एरो, data mining algorithm, and then output will be the knowledge or the graph tables you can say. तो जैसा मैंने ये डायग्राम था, इस डायग्राम का ये एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है, you can say. Okay, I hope you understand this कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. दिस इज बेसिकली फंडामेंटल चीज़ें हैं. तो वी हैव जस्ट डीप डाउन थिंग्स कि मैंने कम शब्दों में समझाने की कोशिश की. या ओके, सो वी अंडरस्टैंड कि टेक्स्ट माइनिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, कितने स्टेजेस होते हैं इसके. नाउ वी जस्ट डीप डाउन ऑन पर्टिकुलर स्टेजेस की क्या क्या होती है. तो फर्स्ट इज लाइक ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोर टेक्स्ट माइनिंग ऑपरेशंस. कि टेक्स्ट माइनिंग में ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, लाइक द मेन जॉब्स द टेक्स्ट माइनिंग शुड परफॉर्म. कि टेक्स्ट माइनिंग में हम करते क्या है टेक्स्ट माइनिंग से. तो टेक्स्ट माइनिंग के फर्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन. like assigning labels to document, is it email or spam or not. जैसे मैंने बताया था, that image is a cat or not, that email is spam or not, that is called classification. यानी कि उसे क्लासीफाई करना, उसे लेबल करना, that is classification. ठीक है. सेकेंड फॉर्म इज क्लस्टरिंग, कि ग्रुपिंग द सिमिलर डॉक्यूमेंट्स विदाउट नोइंग द लेबल्स. मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक जानवर है, ठीक है, जिसकी पूंछें हैं, जिसके 4 पैर है, 2 कान है. तो आपको ये नहीं पता ये कैट है अभी, पर ये एक जानवर है. आपने इसको एक क्लस्टर बना दिया, क्लस्टर नंबर 1. ठीक है. तो अब मान लो आपके पास एक और कोई जानवर आया है, कोई एक और आपके पास एनिमल आया हुआ है, उसकी भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2 कान है, 4 पैर है, 1 पूंछ है. तो आपने उसको इसी क्लस्टर पे डाल दिया. आपको ये नहीं पता कि ये कैट है, क्या पता ये डॉग भी हो सकता है, ये कैट था ये डॉग भी हो सकता है. पर आपने बिना ये जाने कि उसका लेबल क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि आपको लेबल नहीं पता उसका वो है क्या, वो कैट है या डॉग है. आपने उसकी सिमिलर चीज़ें देखी, हाँ 2 कान है, 4 पैर है, 1 पूंछ है, तो एक क्लस्टर पे डाल दो. दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग सिमिलर डॉक्यूमेंट्स विदाउट नोइंग द लेबल्स बिफोर हैंड एक्सेट्रा. गूगल न्यूज़ ग्रुपिंग स्टोरीज, जैसे ओलंपिक्स की स्टोरीज है उसको एक साथ रख दिया. तो इस टाइप में गूगल जैसे काम करता है. दिस इज एग्जाम्पल. ठीक है. तो दिस इज थिंक कि व्हाट इज क्लस्टरिंग यू कैन से. And the third is information extraction. You need to extract the information. Okay, ये क्या होता है आप देखते हैं. So pulling specific entities, listen, name, date, location from a text. This is called information extraction. ठीक है. You need to like extract a particular thing from a text. Fourth is association analysis, finding relationship. Whenever एप्पल इज मेंशन्ड, या किसी भी टेक्स्ट में एप्पल मेंशन्ड है, क्या हम एक स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं या एक फ्रूट की बात, या क्या बोल सकते हैं, यू कैन से एक खाने वाले एप्पल की बात कर रहे हैं या फोन या एक एप्पल कंपनी की बात कर रहे हैं. इट शुड बी मेंशन्ड. तो वी नीड टू, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसोसिएशन एनालिसिस, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. और 5वां होता है ट्रेंड एनालिसिस, लाइक ट्रैकिंग हाउ अ टॉपिक चेंजेस ओवर टाइम. तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, दिस इज बेसिकली अ टेक्स्ट माइनिंग ऑपरेशन, कि इतने सारे ऑपरेशंस हम टेक्स्ट माइनिंग करने के बाद कर सकते हैं. कैटेगराइजेशन, क्लस्टरिंग, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, एसोसिएशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये 5 चीज़ें हम कर सकते हैं. दिस आर यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट माइनिंग. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग. जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उससे पहले, उसके बाद आता है प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग. तो व्हाट शुड बी देयर, लाइक व्हाट आर द प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो व्हाट इज प्री प्रोसेसिंग. तो यू कैन सी दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द यूनिट. यू कैन नॉट डू अ टेक्स्ट माइनिंग विदाउट क्लीनिंग द टेक्स्ट फर्स्ट. ऑब्वियसली RGPP asks it as a steps of pre-processing. तो there are mainly 5 steps. First is tokenization. तो इसमें क्या है, चॉपिंग अ सेंटेंस इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स. फॉर एग्जांपल आई लव AI, तो आई लव AI, तो हमने इसको चॉप कर दिया. ये राइट एरो मीन्स डिस्प्ले द राइट एरो. ठीक है. हमने इसको चॉप कर दिया इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स कॉल्ड टोकन्स. तो हमने इसको टोकन्स में डिवाइड कर दिया. विद दिस इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग.
ठीक है, दिस इज टोकनाइजेशन. सेकंड इज स्टॉप वर्ड रिमूवल, मीन्स रिमूविंग कॉमन वर्ड्स दैट हैड नो मीनिंग इन द सेंटेंस, इज, द, ए, एन, इन, दिस टाइप ऑफ चीज है. तो द कैट इज ऑन द मैट, राइट एरो, द कैट और मैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन दिस सेंटेंस. इज ऑन the that doesn't matter, the main thing is cat or mat. दिस इज स्टॉप वर्ड रिमूवल. स्टिमिंग, अब देखो तीसरी स्टेप और चौथी स्टेप, स्टिमिंग एंड लेमेटाइजेशन, दिस आर काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग, बट मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है. कटिंग ऑफ प्रीफिक्स या सफिक्स टू फाइंड आउट अ रूट वर्ड इज कॉल्ड स्टिमिंग. स्टिमिंग नाम से समझ में आ रहा है कुछ कट हो रहा है. इट्स अ रफ मेथड बेसिकली. एग्जाम्पल रनिंग है तो इसके प्रीफिक्स काट सफिक्स काट दो तो रन बनता है. रन्स है, रनर है, तो ये क्या बनता है, ये रन बनता है. यानी कि हमें रन की मीनिंग पता है पर रनिंग, रन्स, रनर की मीनिंग नहीं पता. तो क्यों ना हम रनिंग, रन्स, रनर्स को कन्वर्ट करके रन बता दें. तो इससे क्या होगा, हमें एक मीनिंग से मल्टीपल वर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा. तो हमें सब सारे वर्ड्स के बारे में इंडिविजुअली सोचना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टिमिंग, कि आपको इसका प्रीफिक्स काट दो या तो सफिक्स काट, मतलब चॉप अप कर दो, तो यू कैन गेट अ रूट वर्ड जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ रूट वर्ड, इज कॉल्ड स्टिमिंग. द फोर्थ इज लेमेटाइजेशन. इसमें क्या है कि यूजिंग अ डिक्शनरी टू कन्वर्ट अ वर्ड ऑन इट्स बेस मीनिंग, दैट इज लेमा. इट्स लाइक अ स्मार्टर देन स्टिमिंग. स्टिमिंग का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें जैसे कि हम स्टिमिंग में सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स को चॉप कर रहे थे, हटा रहे थे, उसके जगह पे हम इसका एक सिमिलर वर्ड यूज करते हैं. जैसे बेटर है, यू कैन से बेटर एज गुड, दो बोथ है द सिमिलर मीनिंग. स्टिमिंग माइट फेल हियर, मतलब स्टिमिंग यहाँ पर क्योंकि हम इसमें प्रीफिक्स सफिक्स नहीं हटा रहे, हम एक्चुअल में ही उसके सिमिलर वर्ड डिक्शनरी से ढूंढ कर यूज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड लेमेटाइजेशन सक्सीडेड. ठीक है, बट स्टिमिंग माइट फेल. लेमेटाइजेशन हो गया. पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग मीन्स लेबलिंग वर्ड्स एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. इट हेल्प्स अ लॉट इन प्रोसेसिंग, कि कौन सा नाउन है, अब सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, अगर ये समझ में आ जाए तो और अच्छे से प्रोसेसिंग की जा सकती है. देखिए, तो विद these all types of pipeline you can set to get the to pre-processing stage working. These are the things, okay, pre-processing के लिए. The next topic is categorization, जो हमने अभी पढ़ा था. categorization is the first you can say text mining operations. ठीक है, तो categorization क्या है? Supervised learning uses, जैसे मैंने बताया था अच्छे से, where we assign predefined categories or labels to a new document based on their training set. मतलब जैसे आपके पास कैट का एक कैटेगरी बना हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि कैट कैसी दिखती है, कैट कैसी दिखती है आपको पता है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट दिस कैट इन दिस कैट कैटेगरी. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट वर्क्स ऑन सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि आपको सुपरवाइज लर्निंग मीन्स ये कैट आपका लेवल आपको पता है कि ये कैट है, यानी कि यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, हाउ इट वर्क्स, एग्जांपल, एन ईमेल कंटेनिंग द वर्ड्स विनर, लॉटरी, क्लिक हेयर, वो ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चला जाता है आपके. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि विनर्स, लॉटरी, क्लिक हेयर, ये सारी जो चीज़ें लिखी रहती है ईमेल्स में, ये अक्सर पॉइंट आउट करती है कि दिस ईमेल्स आर स्पैम ईमेल्स और फिशिंग ईमेल्स, इसीलिए उसे हम डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में भेज देते हैं. तो देयर आर फ्यू कॉमन एल्गोरिदम दैट आर यूज्ड. फर्स्ट इज नाइव बायस एल्गोरिदम. इट यूजेस प्रोबेबिलिटी. अभी आप इतना याद रखो, इट यूजेस प्रोबेबिलिटी कि जैसे फ्री अपेयर कर रहा है तो देयर इज अ 80% चांस कि उस पर स्पैम हो. या ओवरऑल इमेज में क्या होता है, ओवरऑल इमेज में सिर्फ एक फ्री कीवर्ड देख के आप उसको पूरा जज नहीं कर सकते ना, तो देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ नाइव बायस, बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, टोटल वर्ड्स कितने हैं, उसमें से ये सारे वर्ड्स कितने हैं, देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज, देयर इज अ थ्रेशोल्ड थिंग. तो अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रहा है देन दैट माइट बी अ स्पैम केस. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कह सकता हूँ, सपोर्ट वेक्टर मशीन से कर सकते हो, SVM से कर सकते हो. इट जस्ट यू कैन सी दिस इज अ डायग्राम. ठीक है, सो SVM जस्ट इज लाइक यहाँ था आई थिंक डायग्राम. Yeah, this SVM is just like there's a difference, draws a hyperplane separating two categories. For example, you have a category here, you have a category here, so it just draws a hyperplane that separates the both of the two categories, and you can find out the difference between them. The third is decision trees. You can draw a flow chart of yes no questions, कि whether it is there or not, where अगर फ्री है तो क्या ये बन सकता है या नहीं हो सकता, फ्री के साथ और क्या लिंक अटैच है, अगर है तो स्पैम है, अगर नहीं अटैच है तो नहीं है. इस टाइप का यू कैन क्रिएट अ डिसीजन ट्री. तो दिस आर द कॉमन एल्गोरिथम्स दैट आर नीडेड फॉर यू टू सेट अप योर ओन कैटेगराइजेशन टेक्निक्स. ठीक है, ओके, दिस इज द यू कैन से डायग्राम जो कि आपको बताता है, बाकी पढ़ने वाले ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट वी कैन स्टडी लाइक क्लस्टरिंग. तो हमने अभी पढ़ा था, फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ लिया हमने कैटेगराइजेशन. अब हम क्लस्टरिंग को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं.
तो क्लस्टरिंग के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी. क्लस्टरिंग इज यूज इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर नो लेबल्स आर प्रोवाइडेड. हमने अच्छा एग्जाम्पल भी देखा था. द एल्गोरिथम ग्रुप्स डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, डिस्टेंस मेजर्स. यू हैव हर्ड अबाउट कोसाइन सिमिलैरिटी रूल एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों सिमिलैरिटी के बेसिस में हम इसको मार्क करते हैं, डिस्टेंस के बेसिस में मार्क करते हैं. लाइक एग्जाम्पल, यू हैव अ पाइल ऑफ 100 रिसर्च पेपर्स, ठीक है, 1000 रिसर्च पेपर्स. यू डोंट नीड टू रीड देम, you feed them to the algorithm. It notices that 300 paper contain DNA, cell, protein, तो and piles up them together in a cluster A, जिसको तुम बायोलॉजी बोल दो. मतलब एक पेपर में तुमने देखा DNA, सेल, प्रोटीन लिखा हुआ है, तो उसे तुम क्लस्टर ए में डाल दिया. फिर 200 में तुम्हें देखा सर्किट, वोल्टेज लिखा हुआ है, एम्पियर लिखा हुआ है, तो यू कैन पाइल आउट ऑन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल क्लस्टर बना दिया तुमने. तो तुम्हें पता नहीं था कि रिसर्च पेपर में क्या है, किस बारे में रिसर्च पेपर है, बट बेस्ड ऑन द वर्ड्स दैट कंटेन्स दैट स्पेसिफिक वर्ड यू मेड अ क्लस्टर. दैट इज यू आर यूजिंग अन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टू मेकिंग अ क्लस्टर टू कैटेगराइजिंग थिंग्स. ठीक है, नॉट कैटेगराइजिंग, टू क्लस्टरिंग थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. ओके, what are two common algorithms? K means algorithm and hierarchical, sorry, K means clustering and hierarchical clustering. K means में the K is the number of group. K आपके पास ये ग्राफ है, आपके पास इतने सब, मान लो K की वैल्यू आपकी 3 है, तो आपके पास 3 क्लस्टर्स बने हुए हैं, 1 2 3. दीज आर द 3 क्लस्टर्स यू कैन सी इन द डायग्राम क्लस्टरिंग का. एक क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर, चौथा क्लस्टर. देयर आर 4 क्लस्टर्स. तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग. सिमिलैरिटी स्कोर्स के हिसाब से वी जस्ट मेड अ पर्टिकुलर क्लस्टर फॉर ईच ऑफ देम. ठीक है, एंड द सेकेंड इज हेरारिकल क्लस्टरिंग. इट क्रिएट्स अ ट्री स्ट्रक्चर, जिसको हम डेंडोग्राम्स बोलते हैं, डेंडोग्राफ्स बोलते हैं फॉर रिलेटेड टॉपिक्स. इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर एवरीथिंग. तो ये भी बहुत सिंपल है. यू कैन सी देयर आर 2 क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स जो कि मेंशन किया. द other topic is like let's move forward. Information extraction, the process of automatically extracting structured information from unstructured text. Unstructured, अभी भी हम उसी की बात कर रहे हैं. अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड चीजें कन्वर्ट करनी है. तो जब आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से स्ट्रक्चर्ड चीजें निकालते हो, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. बिकॉज अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो ऐसे तो कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है ना, आपके पास पूरा डेटाबेस पूरा बना हुआ है, तो आप किसी से भी कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है. मुश्किल काम तो तब है ना जब आप अनस्ट्रक्चर्ड से चीज़ें निकाल लो. दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? 2 की कंपोनेंट्स होते हैं इसके. पहले नेम एंटिटी रिकॉग्निशन और रिलेशन रिकॉग्निशन. नेम एंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन. जैसे एलन मस्क बॉट ट्विटर इन 2022. तो पर्सन क्या है? एलन मस्क. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ट्विटर. डेट क्या है? 2022. This is called name entity. You need to understand the nouns so that you can extract them from the unstructured data. But relation extraction क्या है? Identifies how entities are connected. जैसे बाउट एक रिलेशन है, खरीदना एक रिलेशन है. किसने खरीदा? एलन मस्क ने. किसको खरीदा? ट्विटर को. तो इट्स लाइक अ फोकस ऑन रिलेशन. इसमें आपका फोकस रिलेशन नहीं था. नेम एंटिटी रिलेशनशिप में आपका फोकस रिलेशन कहीं नहीं था कि एलन मस्क ने ऑर्गेनाइजेशन खरीदा या ऑर्गेनाइजेशन ने एलन मस्क को खरीद लिया. ये सब कुछ पता नहीं चल रहा. इट्स जस्ट लाइक अ नेम और एंटिटी को आपने एक दूसरे से रिलेट किया. बट अगर आपको रिलेशन एक्सट्रैक्ट करना है, प्रॉपर रिलेशन एक्सट्रैक्ट करना है, देन यू कैन गो विद अ रिलेशन एक्सट्रैक्शन थिंग कि आपने बाउट का एक अलग बना दिया, बाउट एंड एलन मस्क एंड ट्विटर. तो दीज आर द टू थिंग्स वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है. 7th इज प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. जैसा ये था इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, एक प्रोबेबिलिस्टिक भी होता है. दिस इज टफ टेक्निकल पार्ट ऑफ यूनिट 1. थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल चीज़ है यूनिट 1 में. हाउ कंप्यूटर गेसेस द वर्ड इज अ पर्सन और अ लोकेशन. व्हाट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी? व्हाई डू वी नीड प्रोबेबिलिटी? बिकॉज वी ऑल नो लैंग्वेज इज एम्बिगुअस. मीन्स एप्पल कैन बी अ फ्रूट, ओके, और एप्पल बी और अ कंपनी. तो we use probability to guess the most likely meaning of based on the context. You need to know the meaning of context. बिना context की कोई चीज़ possible ही नहीं है. ठीक है. You need to completely understand the context of the thing, of the you can say sentence. ठीक है. Like I can say Apple is very good company, yeah, or you can say Apple is very good. So it's not कि I'm mentioning this apple, but I am mentioning a fruit. But if I say कि I have eat like I am full and apple is very good, so according to the context I am full like I have just eaten an apple, so it might be a fruit thing. So you can see based on the like sentence context I am defining the meaning of apple.
This is a probabilistic model कि you need to understand the context or based on that you need to understand what is the meaning of a particular thing because language is ambiguous, we all know. So there is a very popular method, that is hidden Markovnikov model, HMM. What is this? A statistical model that assumes a state, ठीक है, which is a word or a noun कुछ भी हो सकता है, depends on the previous state. Okay, इसका मतलब क्या होता है? If the previous state word was the article, there is a high probability that the next word should be a noun. मतलब जैसे अगर आपके पास अभी वर्ड आ गया the, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कोई वर्ड आने वाला है, तो आपको ये जो वर्ड होता है ना, ये अगर इसको डिसाइड करना है कि ये वर्ड क्या आएगा, तो आप इससे पिछले वर्ड को देखो. अगर पहले वर्ड में द आया है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये कोई नाउन होगा. द कैट, द एनिमल, द पर्सन का नाम, द ताजमहल, तो देयर इज हाई चांसेस कि यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो नाउन आएगा. तो विद दिस एनालॉजी यू कैन से कि HMM इस तरह से काम करता है. यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो, यू कैन मेक योर ओन डायग्राम लाइक दिस, कि लाइक अ स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट अज्यूम्स द स्टेट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस स्टेट. जो स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट से किस तरह से डिपेंडेंट है. दैट इज हिडन मार्कोव मॉडल. Hidden Markov model. Okay. Second is conditional random fields, a more advanced model than HMM. HMM से और अच्छा advanced. It looks at the entire sentence context. मतलब इसमें क्या था, नेबर का कॉन्टेक्स्ट. मान लो ये एक वर्ड है और इस वर्ड का डिपेंडेंट है वो पिछले वर्ड से, ठीक है. तो इसमें क्या था, एक पिछले वर्ड से डिपेंडेंट था, नेबर से डिपेंडेंट था. इसमें पूरे के पूरे सेंटेंस के कंटेक्स्ट से डिपेंडेंट है, नेबर्स से, फीचर्स से, पैटर्न से, rather than just not only the previous step. सिर्फ प्रीवियस स्टेप से नहीं, प्रीवियस स्टेप्स को लेते हुए नेबर्स से, फीचर्स से, पैटर्न से, ये सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है. स्टेट ऑफ द आर्ट फॉर नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये सब उसके यूज केसेस है. तो कंडीशनल रैंडम फील्ड्स, CRF इज वेरी एडवांस्ड मॉडल, more advanced than HMM. Okay, for like the prediction, for probabilistic model of information extraction. Hope you all understand it. The eighth thing is डेटा टेक्स्ट माइनिंग एप्लीकेशंस, कि कितने एप्लीकेशंस होते हैं. तो सेंटिमेंट एनालिसिस में काम आता है. एनालाइजिंग कस्टमर रिव्यूज़, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है फॉर ब्रांड्स. स्पैम फिल्टरिंग हमने डिस्कस किया, जंक मेल्स ऑटोमेटिकली जंक में चले जाएंगे सेक्शन में. चैटबॉट्स में कस्टमर सपोर्ट में बहुत काम आता है. देन रिज्यूमे पार्सिंग में काम आता है. HR सॉफ्टवेयर स्कैन थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज एंड फाइंड द स्पेसिफिक स्किल. फ्रॉड डिटेक्शन में काम आता है, बिकॉज मल्टीपल फ्रॉड्स जो होते हैं टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन में होते हैं, लाइक इंश्योरेंस क्लेम्स का. तो दे फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न कि कैसे फंसाया जाता है लोगों को, और उसके थ्रू मॉडल को ट्रेन करके वो डिटेक्शन करते हैं. समरी टेबल, हम एक बार समरी देख लेते हैं कि फर्स्ट टेक्स्ट कैटेगराइजेशन टाइप क्या होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग. टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, like see the word categorization, जहाँ categorization आ गया it's for the supervised learning. okay, टेक्स्ट क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड ऑब्वियसली. लेबलिंग क्या है, प्री डिफाइंड डेटा, वी ऑल नो, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्री डिफाइंड होता है. अनसुपरवाइज्ड का मतलब अननोन होता है, लाइक यू कैन से अनलेबल्ड होता है. गोल क्या है, असाइन अ क्लास, ठीक है, मतलब एक क्लास को असाइन करना. उसके लिए कैटेगराइज का गोल क्या होता है, एक क्लास डाल दो, एक लेबल कर दो. मतलब क्लास के थ्रू असाइन नहीं होता है, मतलब सबके पास एक लेबल होता है, उसके थ्रू क्लासिफिकेशन होती है. टेक्स्ट क्लस्टरिंग में क्या होता है, ग्रुप बाय सिमिलैरिटी, ठीक है. फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग न्यूज ऑफ स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स. आपको पता है कि आपको स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स वो लेबल आपको पता है, बट ग्रुपिंग रिजल्ट्स बाय टॉपिक, मतलब टॉपिक वाइज रिजल्ट सॉर्ट कर दो. आपको पता नहीं कौन से टॉपिक आने वाली है, यू जस्ट नो कि हाँ मुझे टॉपिक वाइज करना है, पर इधर मेरे को पता है कि टॉपिक का एग्जैक्ट नाम क्या है, स्पोर्ट्स चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट कैटेगराइजेशन एंड टेक्स्ट क्लस्टरिंग, और ये पूछ सकता है एग्जाम में. तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट क्लस्टरिंग एंड कैटेगराइजेशन एंड द प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑल्सो. बस इतना याद रखो, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, और यू कैन स्टडी द कंप्लीट चैप्टर. Yeah, so with this we have completed like introduction, code, text mining, processing, clustering, we have information, probabilistic information extraction, text mining and text application. We have completed unit 1. Hope you all enjoyed, hope you कुछ तो सीखा होगा इस lecture से. So if you have learned anything, any bit of information from this video, please do a like, subscribe, and hope you are doing fine again, and have a nice day. Thank you for watching.